Hello, assalamu alaikum and welcome to the Pavilion. मैं हूं फ़ख्र आलम, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स आर continued coverage of the HBL PSL Season 9 and the news out of the National Stadium Karachi is that the Karachi Kings have been defeated yet again and the Multan Sultans carry on. They have now officially qualified for the playoffs in this year's PSL's 9th season. So congratulations to Multan Sultans. With me in the Pavilion, I've got four fantastic cricketing minds, four former captains of Pakistan, four outstanding individuals who've served the game of cricket in Pakistan really well. First up, I've got Azhar Ali. Good evening, assalamu alaikum and welcome, Azhar. Walaikum salam, thank you so much. Next up, I've got the Professor, Mohammad Hafiz. Good evening, assalamu alaikum and welcome, Hafiz. Thank you. Next up, I've got the most successful Test captain in Pakistan's Test cricket history, Misbah ul Haq. Good evening, assalamu alaikum and welcome, Misbah. Walaikum assalam, bahut shukriya janab. And finally, ladies and gentlemen, I have got the Sultan of Swinging, the Swinging Sultan, the undisputed king of all-rounders, the man who has given us so much to celebrate and has given us so much entertainment here on the Pavilion, and the president of the Karachi Kings, Wasim Akram. Good evening, assalamu alaikum and welcome, Wasim. Good evening, assalamu alaikum. क्या हाल है सबका? बिल्कुल, आपका क्या हाल है? ठीक हाल तो स्टार्ट करें. आपका क्या हाल है? आपका क्या हाल है? आपका क्या हाल है? I'm used to it now. वो एक बंदा जानता है ना नजूमी कोल अपना हाथ दिखाता है. वो देखता है हाथ देखता है उसकी लाइनें देखता है चेक करता है कह रहा है तू गरीब रहेगा. फिर तू अगले 5 साल और गरीब रहेगा. फिर उस तो अगले 5 साल तू बहुत गरीब हो जाएगा. तो कहता फिर तू यूज्ड टू हो जाएगा. तो मेरा भी वही हाल है. That is actually well done. Oh my. All right, folks, let's take a look at the match summary. This is how it went down at the National Stadium in Karachi. Match summary आपके सामने. मुल्तान सुल्तान ने आज टॉस जीत कर पहले बैटिंग करने का फैसला किया. 189 for the loss of 3 wickets, and what an innings there by Usman Khan right on top. That 106 of 59. He's been an unusual talent in this edition of the HBL PSL. We'll talk about that. Captain Rizwan again contributing with 58 of 44 deliveries. Hendricks there 13 and Kuchdil contributing 6 runs. But Mazhar Rabbani picking up 2 for 32 and Hassan Ali 1 for 34. But all round it was a meek performance by the bowling unit of Karachi Kings. Karachi Kings in response, earlier today Wasim Akram was saying, I beg you, I plead with you that you score more than 165. They have actually done that. They've scored 169 today for the loss of 7 wickets in their 20 overs. Shoaib Malik there leading the charge with 38 of 28. Shan Masood, the captain, 36 of 29. Nawaz there playing a bit of a cameo at the bottom there, 27 of 17 deliveries, and Niazi 23 of 19. Usama Mir was the pick of the bowlers, picking up 2 for 29 in his 4 overs. Khushdil bowling really well. We'll talk about that in a bit. He picked up 1 wicket for 16 in his 3 overs. Willie there, 1 for 32 of 4. Jordan, 1 for 34 of 4. Multan Sultans won this by 20 runs. और आइए इसके साथ ही जरा पॉइंट्स टेबल के ऊपर भी नजर डाल लेते हैं क्योंकि मुल्तान सुल्तान अब क्वालिफाई कर चुके हैं प्लेऑफ्स के लिए. This is how the points table is looking now after Multan Sultans qualify for the playoffs. Multan Sultans Badasoor pehle number pe hain. They've qualified for the playoffs 12 points ke saath. Quetta Gladiators right behind them, trailing behind them and looking really good. Peshawar Zalmi at number 3. Islamabad United now at number 4. Karachi Kings sitting at number 5 with 6 games, 2-1, 4 losses, 4 points only. And Lahore Qalandars right at the bottom of the table and have only 1 point courtesy the rain yesterday in Rawalpindi. And that's how your points table is looking like this evening. Right, let's start off with who other but the president of the Karachi Kings. Since you are the president of the Karachi Kings, I'm sure as president of the Karachi Kings, you must be feeling a little, disappointed. But as president of the Karachi Kings, I'm wondering if there are any things, thoughts that you'd like to say. Vipa hai. दो मारोगे मैं 4 लाख कप मारूंगा. परे आया. नहीं गल च सवाल नहीं कर. I know. गल च प्रेसिडेंटशिप हैगी. Yeah. Presidentship का तो सवाल है, please. अच्छा जी. No, very timid performance today by Karachi Kings when they came out to bowl. Especially, I think हम सारे इकट्ठे बैठे मैच देखते हैं पूरा. We picked up straight away कि पहले ही ओवर में जब आपके मेन बॉलर को 15 से 12 से 15 रन हो जाए तो समझो मोमेंटम गया दूसरी टीम की तरफ. Mazhar Rabbani bowled well. He got 2 wickets. He only conceded 32 run in his 4. But otherwise, Mir Hamza looked average. Economy rate almost 11. Mohammad Nawaz, his performance is going bad to worst. I mean, from last 2 years, समझ नहीं आ रही वो क्या क्रिकेटर है. उसको प्लेटिनम में कैसे रख लेते हैं या कैसे उसका किया. अनफॉर्चुनेटली क्रिटिसाइज तो करना पड़ेगा, वो अच्छा नहीं खेलेंगे.
Hassan Ali was pick up, I mean, he bowled okay, got a wicket, 34 runs. Zaid Mahmood was okay, unlucky. विकेट नहीं मिली, उसने भी 34 रन दिए हैं, मगर जब 190 स्कोर हो गया, आई थॉट इवन कराची जब बैटिंग करने आने से पहले मेरे ज़हन बैक ऑफ द माइंड था कि इनके लिए मुश्किल होगा ये स्कोर करना, और वही हुआ. आते ही रन आउट हो गया टीम, और उसके बाद इट वाज जस्ट पेनफुल टू वॉच कराची द वे दे बैटेड. जी हाँ, खैर मुल्तान सुल्तान की तरह बैटिंग की बात कर लेते हैं. व्हाट अ फैंटास्टिक इनिंग्स देयर बाय उस्मान खान हफीज. He's got the shots, he's got the temperament, he's got the strength, the stamina, and delivers every time. आई लाइक दैट सिंप्लिसिटी टू बी ऑनेस्ट. जिस तरह वो उन्होंने इंटरव्यू में बात की, और जो पॉजिटिव एटीट्यूड है कि जब भी वो आ रहे हैं अपनी अपॉर्चुनिटी को, ही इज़ ट्राइंग टू गिव एवरीथिंग विद इन दैट अपॉर्चुनिटी. और कोई भी मौका उनका, जितने भी मैंने उनको पिछले सीज़न से देखा है कि वो अपना मौका नहीं जाने देते. वो इन आउट भी हुए, पिछले साल भी पहले उनको नहीं खिलाया गया, जब आए तो बहुत बड़ा परफॉर्म किया. इस साल भी पहली चॉइस नहीं थे, दोबारा आए, जब भी उनको खिलाया. तो मुझे लगता है कि ऐसे प्लेयर के टैलेंट की एक बड़ी खूबसूरत चीज़ जो है वो उसकी पॉजिटिविटी है कि वो जब भी उसको मौका मिल रहा है, ही मस्ट बी वेटिंग पॉजिटिवली. क्योंकि जब आप नेगेटिवली अपने मौके का इंतज़ार कर रहे होते हैं या आप ये सोच रहे होते हैं नेगेटिवली, सम टाइम अनफॉर्चुनेटली हमारा ये भी प्लेयर्स का जोन आ जाता है कि यार वो अच्छा परफॉर्म नहीं करे तो मैं आ जाऊंगा. तो मेरा ख्याल है कि इस प्लेयर की जो सबसे अच्छी चीज़ है वो ये है कि अपने मौके का पॉजिटिवली इंतजार करता है, और जब इसको मौका मिलता है तो डिलीवर करता है. और अजहर ये हमने ये जो हमने हाइलाइट्स अभी देखी हैं, लेट्स हैव अ लुक एट हिज बैटिंग मैप. जी, स्क्वायर भी, और आप चौके देखेंगे कि 6 से 7 चौके जो पहले 50 में थे इसके, किस शॉट पे लगे? कट शॉट पे लगे. हमने नवाज को कितना अरसा हो गया है, 9वां उसका PSL है, 9 साल तो ये लगा लो. उससे पहले 2 साल आया होगा पाकिस्तान टीम में, या 10 से 11 साल हो गए हैं. आपका मेन स्पिनर आ रहा है और 3 आके कट पे चौके खा रहा है. उससे पहले 5वें ओवर में आया था कि चौथे में आया था, तो प्रेशर कहाँ रहना है आप पे? बिल्कुल, जो भी आ रहा है कट पे चौका खाई जा रहा है. कोई प्लान भी कर लो, कोई विकेटों में कर लो. मिसबा ने कहा है, हफीज़ ने कहा है मैच देखते हो कि विकेटों में करोगे तो मुश्किल है, चांस लेना पड़ेगा बैटर को, मगर उसको चांस लेने की जरूरत ही नहीं पड़ी है. ये पहला बॉल था इसका, और ये बीच में जो पड़ी है, जिस तरह उन्होंने बोला उसको उन्होंने रोका है, कट. ये देखिए, ये भी कट, मतलब शॉर्ट की है. जो अफसोस ये होता है कि जो चीज़ वर्क कर रही है उसको रिपीट ही नहीं कर रहे. विकेट टू विकेट जो बॉल है, जो आराम से वो रोक रहा है, आप उसको वहाँ से पहले शॉट मारने दो. ये शॉट ठीक है, ये बैट्समैन ने अपना शॉट खेला, दैट इज़ फाइन. बट जब आप ये दिस इज गुड शॉट, आप विकेट में बॉल कर रहे हैं, उसके बाद बैट्समैन की क्वालिटी है शॉट खेलना. लेकिन एट टाइम्स जब आप अपना स्पेल स्टार्ट कर रहे हैं, आप जस्ट कट में चौके मदरबानी ने भी खाए हैं. बट गुड थिंग अबाउट उस्मान खान, इसके स्कोरिंग एरियाज बहुत हैं इसके. एक कट भी मारता है, पुल शॉट बड़ी अच्छी है, स्पिनर्स को ही प्लेज ऑल अराउंड. अब 2 स्पिनर्स पे जो कट वाले फील्डर हैं, उनके बीच में से शॉट डिले करके मारना, और फिर एक्स्ट्रा कवर मारना निकल के, फिर थोड़ा सा अगर बीच में भी गेंद दूर है तो उसको बैक फुट पे आके ये मिड विकेट के गैप में मारना. और उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट कि स्ट्रॉन्ग शॉट्स भी उसी तरह हैं. डाउन द ग्राउंड आके गुगली की उनको लेग स्पिनर ने दूर से उस बॉल को सीधा छक्का मार. जब इतनी ऑप्शंस एज अ बैट्समैन आपके पास हों, एज एन ओपनर कि स्पिन को भी आप इतना अच्छा खेलते हैं और मुजरबानी के बाउंस को भी आपने वो कटें अच्छी मारी हैं, दैट शोज कि यार कंसिस्टेंट वो क्यों रन्स कर रहा है. ही हैज़ 3 सेंचुरीज एंड 350s इन T20 क्रिकेट. और स्ट्राइक रेट भी देखें, PSL में दूसरा 100 है उनका स्ट्राइक रेट, ऑलमोस्ट उनका 180. तो ये बताता है कि यार ये कोई तुक्के नहीं लग रहे. ही गॉट ऑल द शॉट्स एंड टेम्परामेंट टू प्ले दो. मैं एक चीज़ हाईलाइट सिर्फ करना चाहता हूँ. 4 प्लेयर हैं मुल्तान सुल्तान के, ज़रा उनकी कैटेगरी सुनिएगा. जी, तैयब ताहिर, शाहनवाज धानी, मोहम्मद अली, उस्मान खान, सिल्वर कैटेगरी. ठीक है. And they're stars right now. Yeah, they're stars. At least Mohammad Ali. Yeah, some of them have really done fantastically. चलिए इसके ऊपर अभी बात करेंगे. कोई पे खेल रहे थे और उनका प्रेशर सारा ऑफ किया हुआ था उन्होंने. रिजवान वाज प्लेइंग रन अ बॉल, और वो वहाँ पर प्रेशर आने नहीं दे रहे थे टीम के ऊपर. सो आई थिंक कि उनकी क्वालिटी ये है कि बाउंड्रीज लगा रहे हैं, फिर 1s and 2s भी साथ खेल रहे हैं, तो डॉट बॉल्स की रेशियो भी कम है, बाउंड्रीज ऑप्शन बहुत ज़्यादा उनके, और साथ में वो पूरी बैटिंग लाइनअप को सेटल किया हुआ इस टाइम पे फॉर्म में है, और ही इज मेकिंग फुल यूज ऑफ. किसी प्रोग्राम में अगर हमें टाइम मिलता है, वी शुड आल्सो डिस्कस हु एंड व्हेन दे मेक कैटेगरीज ऑफ प्लेयर्स. अब डैनियल सैम्स प्लैटिनम में नहीं आता,
मर्जी भी है उनकी, मगर पीसीबी को हर जगह बाव तो नहीं कर देना चाहिए ना, इनका एक आप क्राइटेरिया होना चाहिए कि ये परफॉर्मेंस अगर इस पीएसएल में या इस ए प्लेयर की है तो अगले पीएसएल में उसकी परफॉर्मेंस अगर अच्छी नहीं है प्लेयर ए की तो उसका नीचे आएगा, रिमोट हो जाएगा। 9 साल से कोई एक प्लैटिनम में जैसे नवाज है, वो मेरा नहीं ख्याल है प्लैटिनम प्लेयर है बिटवीन। नहीं, ये हम बात कर रहे हैं इसकी उस्मान खान की, पिछले साल भी इम्पैक्टफुल प्लेयर थे, शानदार परफॉर्मेंस, इस साल भी सिल्वर में। तो वो समझ में नहीं आता, जो अच्छा करे ग्राउंड में उसको ऊपर जाना चाहिए, जो अच्छा नहीं करे एक्चुअली इंसेंटिव होना चाहिए कि मैं अगर अगले साल प्लैटिनम में रहना चाहता हूँ तो मेरी परफॉर्मेंस जो है वो बिल्कुल सही होनी चाहिए। प्लेयर आपको सिल्वर में मिल रहा है तो मैं कहता हूँ और क्या चाहिए। नहीं, बट आज यू गाइस वर ऑन बोर्ड फॉर लिटिल व्हाइल, जब जितना भी थे तो ये कौन when who decides? लास्ट ईयर apparently पीसीबी चेयरमैन थे जो उन्होंने डिसाइड किया था, हालांकि उनकी जॉब नहीं है। लेकिन की कह सकते हैं, मर्जी पीएसएल और सेलेक्ट उस टाइम तो सेलेक्टर्स और पहले था सेलेक्टर्स मिलके बनाते थे, लेकिन जब रमीज भाई आए तो उन्होंने वो अपने हाथ में ले ली। वो कितना टाइम सी ਉਹਦੇ ਕੋਲ टू मच बहुत एक दफा तो उन्होंने किया है ना कि जितने भी पाकिस्तान टीम में प्लेयर्स थे और परफॉर्म कर रहे थे और टीम का हिस्सा थे उन सबको उन्होंने प्लैटिनम में डाल दिया, और उस टाइम फ्रेंचाइज को बड़ा मसला हुआ टीम बनाते हुए कि कौन से प्लेयर्स में, ज़ाहिर है बैलेंस ऑफ द टीम आपका एकदम जो है जितने भी प्लेयर हैं वो सारे ही प्लैटिनम में चले गए हैं या डायमंड में चले गए हैं, तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है टीम को, 3 प्लेयर आपने रिटेन करने तो कैसे करें। एट टाइम्स इंटरनेशनल प्लेयर्स के साथ समझ आती है क्योंकि वो कहते हैं कि यार हमने आना तो इस पे आना ठीक है, लेकिन लोकल के लिए तो आपको कैटेगराइज सही तरीके से करना चाहिए, परफॉर्मेंस होना चाहिए। पिछले साल की पीएसएल देखो, डोमेस्टिक देखो, फिर आप आओ कि इस साल ये कैटेगरीज हैं। इट्स अ वेरी सिंपल प्रोसेस, बट हर चीज़ कॉम्प्लिकेट, उसमें भी सिफारिशें आ जाती होगी, उसमें भी आती है। आई एम टेलिंग यू कि एनर्जी उत्ते कर दो। I don't know why people do that. 21वीं सदी में आ गए, हमारी सिफारिशें नहीं खत्म होती। Absolutely. मिसबा मोहम्मद नवाज की चूंकि वसीम बात कर रहे थे, but just take a look at the bowling figures of मोहम्मद नवाज and खुशदिल शाह today. दोनों ने 3-3 ओवर कराए हैं, मगर एक तरफ मोहम्मद नवाज ने अपने 3 ओवर में 37 रन दिए हैं 12.33 की इकोनॉमी के साथ, जबकि खुशदिल ने 3 ओवर में 16 रन दिए 5.33 की अपनी इकोनॉमी के साथ। इनको जब आप कंपेयर करते हैं तो डोंट यू थिंक कि खुशदिल शाह को हम जो है वो बहुत ज़्यादा हल्का ले लेते हैं कंपेयर टू खुशदिल शाह? पिछले सीजन में अगर देखें तो ही वाज पिक ऑफ द बॉलर्स, एक ऑलराउंड परफॉर्मेंस थी उनके लिए, जब भी मुश्किल टाइम पे पावर प्ले में भी उन्होंने बॉलिंग की, अभी पिछले मैच में उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग की। आज भी अगर वो देखें लेफ्ट हैंडर के सामने आए हैं, बॉल कर रहे हैं, वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स ऑफ स्पेन मलिक खेल रहा है सामने, कि जस्ट केप्ट एवरीथिंग सिंपल। देखें विकेट टू विकेट थोड़ा सा दूर बॉल कर रहे हैं और बैट्समैन को कह रहे हैं आप चांस लें, जबकि ऑन द अदर साइड नवाज को अगर देखें तो नवाज ने 3 चौके तो ऑप्शन के बाहर गेंद करके कट पे खा लिए हैं। जब आप वो 12 रन आप मतलब है कि खामखा दे रहे हैं विदाउट टेकिंग एनी चांस, बैट्समैन खड़ा है मज़े से उसने कट मार दिया और आपको 3 चौके, तो यही एक डिफरेंस है। आप आते हैं विकेट टू विकेट बॉल करते हैं, प्रेशर बिल्ड करते हैं, और बेसिकली स्पिनर का काम ये है कि बैट्समैन को कहे भाई ओवर द टॉप मार लो मुझे, मैं आपको बॉल हूँ। ये देखें ये इजी बॉल है, पहला बॉल था इसका, बिल्कुल। ये आपको सर्कल में पीछे कोई फील्डर नहीं है, कोई आपको ख़तरा नहीं है, बाहर गेंद है, आप उसको यूज़ कर रहे हैं, आराम से गैप में मार रहे हैं। ठीक है, ये जो अच्छे शॉट्स हैं वो तो आपको आपने मोमेंटम दे दिया, प्रेशर हट गया, आप पे उल्टा प्रेशर आ गया। बैट्समैन ने कहा इट्स एन इजी पिक, आई कैन पिक ऑन दिस बैट्समैन। लेट्स टॉक अबाउट मोहम्मद रिजवान्स बैटिंग एंड हिज कैप्टनसी एट द सेम टाइम। वसीम, ही हैज बीन फिनोमिनल। उसकी जो बैटिंग है 58 और 44 वो सिचुएशन के मुताबिक बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सही थी, बिकॉज वो उस्मान लगा हुआ था ना मारने, उसने कहा तू मारी जा, आई विल गिव यू अ स्ट्राइक, बाद में मौका मिलेगा, वो तो आउट हो गया बाद में आके मज़ा रबानी से। बट इन जनरल आई थिंक ही प्लेड गुड इनिंग्स, 190 तक स्कोर पहुंचा। जी हाँ, ये आप जरा देखें, यू नो ही इज क्वाइट अ कैरेक्टर एंड ही इज वेरी बिजी एट द क्रीज। व्हेन यू लुक एट हिम, लुक एट दैट, just fantastic shots. Just a good cricketer. Yes. Sensible cricketer, situation awareness का पता है, कप्तानी का पता है, और इसने मुल्तान सुल्तान के लिए जब से ये कप्तानी कर रहा है, आई थिंक इसने इनको 5 में से 4 सीजन, चौथा सीजन ही क्वालिफाई किया है इन्होंने टॉप 4 के लिए। जी, इनका एज अ कैप्टन रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, 62.65 विन रेशियो है इनका, एंड दैट्स जस्ट फैंटास्टिक स्टफ फ्रॉम मोहम्मद रिजवान। कंग्रेचुलेशंस टू हिम एंड हिज एंटायर मुल्तान सुल्तान स्क्वाड फॉर qualifying. They're the first team to qualify in this HBL PSL 9. With that, we're going to take a break here on the Pavilion. We'll see you on the other side. Stay with us.
Welcome back to the Pavilion. मैं फखर आलम, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स आवर कंटिन्यूड कवरेज ऑफ द HPL PSL सीजन 9 with me. 4 fantastic minds of the game of cricket in the Pavilion. I've got Azhar Ali, Mohammad Hafiz, Misbah Haq and the great Wasim Akram. Right जनाब, हम लोग बात कर रहे थे कराची किंग्स बामुकाबला मुल्तान सुल्तान, जो कि मुल्तान सुल्तान से मैच जीत लिया है, and कराची किंग्स and their woes continue. हम लोग रिजवान खान की कप्तानी की बात कर रहे थे अभी ब्रेक पे जाने से पहले. Now let's take a look at how the Karachi Kings bowlers did. Were you happy? Sorry, what happened there? Why are you laughing? हो गई फिर तो नवा क्रिकेटर बनाता है. मैं कह कौन है? रिजवान खान. मोहम्मद रिजवान. Actually, उस्मान खान और रिजवान सामने इकट्ठा लिखे हुए आ रहे ऐसे होता है. मैंने कर दिया. कॉलेज का मैच हो रहा था तो प्रोफेसर साहब कर रहे थे कमेंट्री. वो दोस्त है, उसने जो है ना कट पे मारा चौका, तो और ये बहुत ही जबरदस्त पुल पे चौका मार दिया उन्होंने. उसने बल्ला फेंक, कहता है यार ये क्या कमेंट्री हो रही है, शॉट कौन सी है. तेरे डैनी का भी तो बताया था, क्या था वो? जेडी पुमनी. Jenny Morrison. All right, let's take a look. Wasim, what for you? I mean, obviously, Nawaz की तो आपने बात की कि Karachi Kings, but in the bowling department, who else do you think could have delivered better for the Kings? अब जो हैं उन्हीं में से इन्होंने पिक किए हैं. जो पिक किए हैं वही आपके सामने हैं. मीर हमजा एक्सपेंसिव, मे बी गेट्स अ विकेट अर्ली ऑन बट डजंट लुक लाइक इट. लोगों को पता है कि पेस नहीं है, अटैक करना है, स्विंग्स द बॉल. यस, एक्सपीरियंस है, अच्छी स्लो बॉल है, बट मैं शुरू से कहता आ रहा हूँ कि 140 प्लस का इन्होंने बॉलर ही को नहीं रखा जब ये ड्राफ्ट में गए हैं. ये तो वो जीनियस हमारे साथ है ना एक कराची किंग के साथ, उससे पूछ ली ये क्वेश्चन मैंने. मुझे मिलते ले मैनू जरा एक दफ़ा. बॉलिंग वेल, लेकिन बात वही है कि एक्स फैक्टर जो हम, जैसे अब क्रिस जॉर्डन आए हैं उनके, तो आपको नज़र आ रहा है कि वो एक एक्स फैक्टर है. इस तरह मोहम्मद अली थोड़ा सा बन गए. अब ये अभी तक इनके पास वो चीज़ नहीं है, पेस ऐसी नहीं है या रिप्यूट ऐसी नहीं है ओवरऑल के. आपने ओवर द ईयर्स कोई परफॉर्मेंस कहीं पे की होती है तो एक बॉलर का जो है प्रेशर होता है दूसरी टीम पे. Correct. वो नहीं है तो कहीं ना कहीं. और दूसरा ये, अगर ऐसी आपकी बॉलिंग लाइनअप है तो फिर आपका डिसिप्लिन टॉप क्लास होना चाहिए. स्पेशली जब आमिर आपने ट्रेड किए, जो भी इनकी डील बनी है, आमिर कोयटा चला गया है. वो था बॉलर जो आखिरी ओवर करता था, 19वां, कई दफ़ा 2 करता था, 18वां या 20वां या 17वां या 19वां, तो फ़र्क तो पड़ता था. जब उधर से आई थिंक नवाज आया नहीं. अच्छा, तो ऐसी सिचुएशन में जो डिसिप्लिन है वो बड़ा, और आपका जो गेम प्लान है बड़ा वो स्पेसिफिक होना चाहिए प्ले. जैसे आज रिजवान को आपको पता है कि लेंथ बॉल आप नहीं कर सकते. रिजवान ने एंड तक अगर आप देखें तो उसने कितने शॉट मारे हैं जो कि उसने स्केल अगर मिड के बीच में मारा है. इट मीन्स यू आर अलाउइंग हिम टू जस्ट हिट दैट लेंथ. उसको आप फुलर लेंथ कराएं, उसको सामने मारना पड़े, पेस ना दें. अगर आप उसको ये वाला लेंथ देंगे तो वो आपको डैमेज करेगा. तो ये फिर एंड पे क्या होता है, 15 से 20 रन इज द मार्जिन, जो कि अपने डिसिप्लिन से कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वो जो बॉलें कट वाली और ऐसी दी हैं उन्होंने, वो कहीं ना कहीं ये डिफरेंस डाल सकते थे. चलिए जी, इस तरह कई ओवर्स जैसे हसन अली भी की ओवर्स करते हैं बड़े, 19th या 20th ओवर करते हैं, फिर पावर प्ले में या छठा ओवर करने आते हैं. तो उसमें जिस तरह उन्होंने 1900 ओवर किया है उन्होंने, वो मतलब कि बेहतरीन ओवर गुजरा. लेकिन रेगुलरली देखा जा रहा है कि वो उस तरीके का इम्पैक्ट नहीं डाल रहे वो, कि जहाँ पर उनकी टीम को एक तगड़ा ओवर चाहिए वो लीक कर जाते हैं रन्स. आई थिंक ही हैज़ टू लीड फ्रॉम द फ्रंट बिकॉज ही इज़ द मोस्ट इम्पैक्टफुल बॉलर थ्रू अराउंड द ईयर्स. ये शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल ये कंसिस्टेंटली जो रिजवान को किए हैं और वहाँ पे चौके हुए हैं, और उस्मान खान को कट पे जो चौके मिले हैं हर बॉलर ने दिए हैं 2-2 चौके उसको. दैट बेसिकली अलाउ हिम टू जस्ट कीप गोइंग एट दैट स्टेज. मैं सिर्फ एक चीज़ कहना चाहता हूँ, देखें क्लियरली अंडर परफॉर्म टीम है कराची की. अगर आप प्लेयर्स की बात करें, शान मसूद को देख लें, शुएब मलिक को देख लें इस सीज़न के अंदर, हसन अली, नवाज, इवन विंस, दे ऑल लुक लाइक वेरी अंडर परफॉर्म एट द मोमेंट. ये मैं नहीं कह रहा ये बुरे प्लेयर हैं, बट या समथिंग इज़ नॉट वर्किंग फॉर देम. कोई भी प्लेयर इंडिविजुअल ब्रिलियंस जो पोलार्ड ने दिखाई है अभी तक, उसके अलावा कोई ऐसा कलेक्टिव एफर्ट नज़र नहीं आ रही जहाँ पे
ताने बाने मिलने शुरू हो जाए. मुझे लग रहा है कि ये एक इनका इशू है, बाकी ताड़ी मर्जी. शान मसूद की बैटिंग की बात कर लेते हैं अजहर जरा. शान मसूद ने आज 36 रन किए 29 गेंदों के ऊपर. वाज़ेह तौर पे एक रन रेट उनके सामने अवेलेबल था, ये था, एंड अगेन इट्स लाइक ही गेट्स अ लिटिल बिट ऑफ अ स्टार्ट एंड कराची किंग्स ने पहला छक्का मारा है 190 चेज करते हुए 13th या 14th ओवर में, वो भी इरफान नियाजी ने आके मारा है जी. और जो टॉप 3 लोएस्ट स्ट्राइक रेट हैं इस वक्त 100 रन से 100 या 100 से ज़्यादा रन, उसमें 2 कराची किंग्स के बैटर हैं. एक है शान मसूद और दूसरा है शोएब मलिक. शान मसूद का अभी तक इस PSL में स्ट्राइक रेट है 104 और शोएब मलिक नंबर 2 पे है, उसको 117, और नंबर 3 पे रायली रूसो, कोयटा का कप्तान. वहाँ वो जेसन रॉय और छोटू, वो क्या नाम है अपना, साउथ शकील ही काबू नहीं आ रहे, तो उसके लिए ठीक है, उसका 118 का है. और अभी तक 6 मैच हो चुके हैं और 2 50 किए हैं जी हाँ. कराची किंग, एक शोएब मलिक ने और एक पोलार्ड ने. तो ये चीज़ें नज़र आ रही है कि बैटिंग परफॉर्म नहीं कर रही है आपकी और बॉलिंग भी नहीं कर रही. So Shan again, as I said, Shan started off again. उनको एक स्टार्ट मिला, उन्होंने 36 रन किए, but then again couldn't carry on. And then the shot that he played, executed, slog sweep. I couldn't understand that shot. देखिए, एज ए लेग स्पिनर आपने लेग स्पिनर के अगेंस्ट लेफ्ट हैंडर बैट्समैन जो है वो चांस तो लेना चाहिए उनको, क्योंकि आप ऑलमोस्ट 11 एंड ओवर चेस कर रहे हैं. बट ऑप्शन क्या ले रहे हैं, कौन सी लेंथ पिक कर रहे हैं, लाइन कौन सी पिक कर रहे हैं. या आपको बहुत सीधा बॉल था, फुल गिरा हुआ था. इट्स बेटर ऑफ गोइंग स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड और लॉन्ग ऑन की तरफ हिट लगाते तो ज़्यादा चांस. ऐसे दफ़ा मैं अजहर बहुत आउट हुआ हूँ. मैं तो चलो नंबर 8 का बैट्समैन था ना, नंबर 11 का है, तो ये प्री प्लान होता है. प्री प्लान होता है, ये नहीं होता कि बॉल पड़ेगी तो उसके आपने पहले से प्लान किया होगा कि मैंने हिट मारनी चाहिए, कहीं भी गेंद आया तो गेंद फुल हो गया तो वो बीट हो गया. शान थ्रू आउट दिस इनिंग ऑल्सो वो ठीक है, रन रेट है, लेकिन अब बात ये 2 विकेट आपके गिरे में, आपने गेम को लेकर चलना है. उसमें शान जो है वो एक शॉट पे बहुत ज़्यादा रिलाई करते हैं, हट के एक्स्ट्रा कवर. अगर वो ना मिल रही हो तो ये जो इतना गैप है लॉन्ग ऑन और मिड विकेट की तरह में, आप 1s and 2s लें, आप 8-8 9 चलाते रहें, गेम को लेकर चलें. अब आपका 50 होगा, 60 होगा, यू नेवर नो आपकी एंड में हिटें लगें. लेकिन ये आप क्योंकि बैटिंग आपकी 7 नंबर के बाद नहीं है और 7 नंबर पे भी आपका नवाज है जो कि परफॉर्म नहीं कर रहा, तो आई थिंक कि बहुत ज़्यादा बर्डन है एज ए कैप्टन भी. और उनके जो मेन प्लेयर्स हैं टिम साइफर्ट या जेम्स विंस, वो भी ऐसी कोई कंट्रीब्यूशन नहीं कर रहे. ये आप जरा देख सकते हैं हफीज शोएब की और शान की जो पार्टनरशिप थी आज की. इन दोनों को अगर आप देखें, इन दोनों का अच्छा स्टार्ट मिला. हाँ, इन दोनों के बड़ी अच्छी बॉल बल्ले पे आई है. पहले ओवर के बाद शान के बैट में भी बॉल लगा है और शोएब को आते 2-3 बाउंड्रीज मिली हैं. लेकिन जब आपको ऐसा स्टार्ट मिलता है तो आप उसको कंटिन्यू करते हैं बाय अप्लाइंग मोर शॉट्स रादर देन कि आप बिल्कुल ही अपने आप को जो है वो उस जोन में ले जाए जहाँ पे आप अपने पे प्रेशर डाल लें. तो अगर आपको 10 बॉल पे 20 रन मिल गए हैं तो उस मोमेंटम को आपने कंटिन्यू करना. तो समवेयर आई थिंक द बोथ प्लेयर्स गॉट द गुड स्टार्ट बट दे कुडंट कंटिन्यू विद द सेम मोमेंटम which cost them the game, to be honest. Like this partnership was looking good जी, but वो कुछ परफॉर्मेंसेज ऐसी होती हैं जो मैंने पहले भी बात की थी आपसे कि वो परफॉर्मेंसेज होती हैं वो इम्पैक्ट नहीं होता. तो अगर आप ओवरऑल इनकी आज की इनिंग्स में देख लें तो स्कोर करने को नवाज ने भी किया लेकिन उसका कोई इम्पैक्ट नहीं था. स्कोर करने को शान ने भी किया लेकिन उसका कोई इम्पैक्ट नहीं था. तो इसलिए इम्पैक्टफुल परफॉर्मेंस करना T20 की ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, जो कि इस वक्त शायद मोमेंटम की इशू है, एक पॉजिटिव वाइब नहीं है इनके पास. There's something wrong which is not working for them and that is impact. जो मिसाल आपके सामने है कि उनके टॉप ऑर्डर में एक प्लेयर 80, 90, 100 की तरफ जा रहा है. जब आप एक प्लेयर कर रहा है तो ऑटोमेटिकली सारी टीम परफॉर्म करे. उनको तो बैटिंग पिछले मैच में 4 आउट हुए थे, इसमें 3 आउट हुए. आई थिंक कि वो बहुत बड़ा फैक्टर है कि आपकी जो टॉप ऑर्डर है उसमें एक कम से कम बड़ी इनिंग जरूर खेले. वो स्टार्ट मिलने के बाद जो एक जो हफीज भी बात कर रहा है कि कंट्रोल करना गेम को, कि आप शुरू में आपके 2-3 बाउंड्रीज लग गई, आपने 25-30 रन कर दिए, दैट्स इट. बैट्समैन जो है उस टाइम पे फिर गेम को कंट्रोल करता है कि अब मैं जो है ना अपनी मर्जी से खेलूंगा और जहां डोमिनेट करूंगा वो नहीं. और जिस तरह शान आउट हुए, मुझे लग रहा है बहुत सारे उस दिन मनरो इस तरह आउट हुए हैं, फखर जमान इस तरह आउट हुए हैं. मुझे लगता है कहीं ना कहीं बाउंड्रीज भी इनके ज़हन पे असर कर रही हैं क्योंकि ये सामने नहीं मारने जा रहे, बहुत ज्यादा स्केयर ऑफ द विकेट मारने जा रहे हैं लेफ्ट आर्म स्पिनर को या लेग स्पिनर को. शायद वो बड़ी बाउंड्री लग रही है इस वजह से, और उसकी वजह से फुलर बॉल पे लाइन मिस करते हैं, लेंथ मिस करते हैं और बोल्ड हो रहे हैं. इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जो मैच इनका मुल्तान में भी हुआ था तो शान इसी तरह आउट हुए थे, उसामा मीर से ही आउट हुए थे और यही शॉट के आउट हुए. यही ऐसे. और दूसरा ये खड़े भी बिल्कुल स्टंप्स कवर करके, जब आपने
ایسی شاٹ مارنی ہے سامنے, تھوڑا سا اپنے آپ کو آپ روم دیتے ہیں تو ایکسٹینشن آف یور آرمز, دین یو ہیو ٹائم. وہ ہے نا, وہ کریمپ ہو رہا ہے نا, کریمپ ہوں گے تو ادھر کبھی بھی نہیں لگے گی شاٹ. آپ ایون مڈ وکٹ یا سامنے مڈ آن پہ بھی اتنا آسان نہیں ہے شاٹ مارنا. بھائی سے پوچھو, بھائی بڑی دفعہ ڈنڈے اڑائے ہیں اپنے, اڑے ہیں میرے ایسے والوں پہ. تو یہ شاٹ کھیلنے ہو تو تھوڑا سا اگر آپ اپنے آپ کو روم دیں تو زیادہ بہتر چانس ہوتا ہے آپ کے پاس یہ شاٹ کھیلنے کا. اب آ جاتے ہیں ملتان سلطانز کی بولنگ کی طرف. محمد علی جب سے ملتان سے نکلے ہیں مصباح, وہ والے محمد علی نہیں نظر آ رہے, کیا چکر ہے؟ آئی فرق ہے نا, تھی ہوں دس رہے ہو تو کہہ رہے تھے ہاتھوں نکلو گے تو پھر تھوڑا. بٹ آئی تھنک اوور آل اگر ہم دیکھیں تو بالنگ اچھی. آج بھی ایک ان سائڈ کا چوکا, ایک آخری بال کا چوکا. اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو 8 and over اس پچ پہ. اگر آپ پریشر ہو, یہ دیکھیں یہ بیڈ لک تھی, لینتھس تھی ایک نو بال کی, جس کی وجہ سے میرے خیال میں یہ ٹھیک ٹھاک آپ کو نقصان پہنچتا ہے. نو بال پہ آپ کو فری ہٹ ہوئی, آپ کو نو بال کا رن بھی گیا, پھر چوکا ایکسٹرا ہوا آپ کو فری ہٹ پہ. تو یہ چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہیں جو آپ کو دیکھنی پڑیں گی. اوور آل آئی اسٹل بلیو کہ اگر پوری بالنگ ایفرٹ کو دیکھا جائے, اسٹل آپ دیکھیں گے سلور ونس ان کو بہتر یوٹیلائز بھی کیا, اوور آل بہتر بالنگ کی. Yeah, well, there you have that. Chris Jordan, how good was Chris Jordan today, Wasim? His Yorkers are just phenomenal at that pace. Yes, and with pace. Yes, with that. So, abhi again, IL T20 में I was commentating. So he had उसका interview आया जो किया one of my co-commentators ने. इसने दोबारा बात की कि I've been told and I've noticed myself कि pace matters in this format. So I'm trying to bowl quicker now. وہ سلو بالز میں نے تھوڑی کم کی ہیں. میں کوشش کروں کہ یارکر کروں تو زور لگا کے کروں, پورا ویریشنز تھوڑی کم کروں. سو اس لیے اس کی چیس پیس 140 142 اس کی کنسسٹنٹ آ رہی ہے. اور فزیکلی ویری فٹ ہی از اسٹل ون آف دی بیسٹ فیلڈرز ان دا ورلڈ ان دس فارمیٹ. جی ہاں بالکل. آئی مین اٹ واز جسٹ فینٹاسٹک دی وے ہی واز گوئنگ اباؤٹ ہز بزنس ٹوڈے. اینڈ جو خاص طور پہ ڈیتھ میں آ کے جو انہوں نے یارکرز کیے ہیں وہ اتنے کنسسٹنٹ اور اتنے آن دا ڈاٹ آن دا ٹارگیٹ تھے, ویورڈ نہیں تھے. لیکن میرا ایک سوال ہے یہاں پر حفیظ, ہاؤ از اٹ دیٹ somebody like Chris Jordan can bowl back to back 4, even 5 Yorkers? Look at those Yorkers. That's what I'm saying. I mean, just دیکھیں اس میں آئی تھنک وسیم بھائی نے اس دن بھی بات کی تھی, اٹس آل اباؤٹ کانفیڈینس, اٹس آل اباؤٹ پریکٹس, کہ آپ کو اپنی پریکٹس جو کی ہوئی ہے اس پہ کتنا کانفیڈینس ہے. اور ایز اے فاسٹ بالر وین یارکر از یور بیسٹ بال اینڈ یو کین بول 5 balls 6 balls in an over, why you are hesitating, why you are having a fear somewhere in your mind کہ میں یہ کروں گا تو فل ٹاس ہو جائے گا. تو مجھے لگتا ہے وہ ویریشن ضرور آئے, بٹ اف سم تھنگ آلریڈی یو گاٹ اے اس لیول پہ انٹرنیشنل لیول ہو گیا, یہ لیگز ٹاپ لیگز دنیا میں جو اس لیول پہ اگر آخری گیند پہ اپوزیشن کو 4 چاہیے یا 5 چاہیے اور میں بولنگ کر رہا ہوں تو میں کیا بال کروں گا؟ وہ بال کروں گا کہ جس پہ چھکے کا چانس نہیں ہوگا. کریکٹ. ٹھیک ہے, سلو بال پہ ہے کہ چھکا لگنے کا چانس نہیں ہے, بال پہ بھی لینتھ بال بھی چھکا. یارکر انلیس انٹل فل ٹاس ہو جائے, وہ کوئی ایکسیپشنل شاٹ مار دے مجھے, وہ چھکا ہے, ادروائز چوکا ہوگا زیادہ سے زیادہ. سو یہ چیزیں بولرز نے سیکھنی ہے, یہ کوچ نہیں سکھا سکتا. ابھی دبئی والا ٹرائل T20 میں آخری گیند پہ 6 چاہیے تھا اپوزیشن کو جیتنے کے لیے. سکندر رضا واز بیٹنگ 5 to equal 6 to win. یو اے کا بولر تھا, ہم نام بھول گئے, بڑی اچھی بولنگ کی اس نے, 5 بالیں, اور آخری گیند سلو بال کیا, چھکا. Oh wow, just absolutely tragic. All right folks, with that ہم لیں گے ایک اور وقفہ right here on the pavilion, but when we come back آپ کے لیے کچھ پیکیجز ہیں اور اس کے بعد آپ کا فیوریٹ سیگمنٹ #Ask the Pavilion. آج آپ کے بہت سارے سوال دیں گے, کچھ زیادہ ٹائم ہم اس کے اوپر اسپینڈ کریں گے. Stay with us, you're watching Sports. Hello and welcome back to the Pavilion. میں ہوں فخر عالم, آپ دیکھ رہے ہیں اسپورٹس. Our continued coverage of the HBL PSL Season 9. With me in the Pavilion, I've got 4 fantastic former captains of Pakistan who know the game of cricket really well. I've got Azhar Ali, Mohammad Hafiz, Misbah ul Haq and the great Wasim Akram. اور آج ہم کچھ دیر پہلے بریک پہ جانے سے پہلے اس سے پہلے بات کر رہے تھے آج جو کراچی میں میچ ہوا نیشنل اسٹیڈیم کراچی میں, ملتان سلطانز کا اور کراچی کنگز کا. ملتان سلطانز نے میچ جیت لیا, 2 points حاصل کر کے they are the first team in this HBL PSL 9 to have qualified for the playoffs. And Karachi Kings, well, they have a lot to worry about. اور اس کے ساتھ ہی اب شروع کرتے ہیں آپ کے ہمارے فیوریٹ سیگمنٹ جس کا نام ہے #Ask the Pavilion. سب سے پہلا سوال حسن کا سوال ہے. آپ کا ایکس ہینڈل ہے حسن A94560444. آپ کہہ رہے ہیں السلام علیکم, پلیز ask the panel on why Karachi Kings had the best local talent throughout their seasons
who are now the core of other teams? Why do they never give them enough and consistent chances? Yes, President Karachi Kings, Wasim Akram. Because हर साल आप certain players वो कर सकते हो, retain कर सकते हो. So आप वही कर सकते हो जो आप समझते हो. इस साल तो I suppose decide जो हमने cricket director रखा उन्होंने किया सारा ये I think हैदर ही उसके डिसीजन है सारे किसको रिटेन करना है किसको नहीं करना. बट कई दफ़ा आप नहीं रखते रिटेन करते हो, वो 2 साल बाद डिफरेंट प्लेयर बन जाता है. अब 10 साल पहले जो प्लेयर था वो अब अच्छा हो गया तो उसमें कराची किंग्स का कसूर थोड़ी ना है. 10 साल तो नहीं ना किसी को रख सकते 9 साल एक टीम के साथ. खुरम अनवर आपका एक्स हैंडल है खुरम अहमद MD. कराची किंग्स ARY should be a case study. Their team style of play, support staff are an antithesis of the city they claim to represent. It is a big task not to be liked by a cricket crazy city, and they have accomplished it. Rebrand and relaunch. Message for you. I think ये message तो as a fan, as a yeah, no, that's a बिल्कुल सही कह रहा है. Fans are upset and होना भी चाहिए जब टीम अच्छा नहीं करेगी. 1 साल ना करे, 2 साल ना करे, 3 साल ना करे. इस दफ़ा कप्तान भी चेंज किया, नए प्लेयर भी लेके आए, नया लुक भी दिया. सो आई सपोज थोड़ी सी पेशेंस चाहिए होगी. अब कप्तान नया है, पहला साल है. दिस इज़ नॉट द एक्सक्यूज़ आई एम सेइंग. ऐसे थोड़ी पेशेंस की ज़रूरत है. बट रीब्रांड वो सब तो कर लिया ना. और की वसीम भाई मुझे लगता है कहीं ये तो नहीं है कि यहाँ पे प्रेशर बहुत ज़्यादा है. जैसे अगर इस्लामाबाद का थोड़ा सा एटमॉस्फेयर देखें या मुल्तान का एटमॉस्फेयर देखें तो ऐसे लगता नहीं कि प्लेयर्स पे कोई प्रेशर है या बहुत ज़्यादा हो जाते हैं. 4 साल साथ रहा हूँ, 5 साल इस साल नहीं हूँ, कोई प्रेशर नहीं है प्लेयर्स पे, नॉर्मल है. Our owner is fine, Salman is fine, he comes and backs you up. If he loses, he doesn't talk to the players, doesn't tell them anything. वो मेरे से बात करेंगे या किसी और से बात करेंगे. बाकी लड़कों को तो प्यार करते हैं. फ्रीली एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे. इवन शान द वे ही यूज्ड टू प्ले, आई मीन उसकी भी थोड़ी सी वो उस तरीके से वो फ्रीडम के साथ जैसे वो खेलते थे वो वैसा नहीं कर पा रहा है. एज फार एज माई सेल्फ कंसर्न, और मुझे जो पता है पूरा फ्रीडम है इनको, जो खेलना है, जो करना है, जो फैसिलिटीज हैं जो सबको मिल रही हैं, वो कराची किंग्स की टीम को ही मिल रही है. SBH बिलाल _ हसन आपका एक्स हैंडल है. आप कह रहे हैं वसीम अकरम, फखर भाई प्लीज आस्क वसीम अकरम टू टेक ओवर द realm of Karachi Kings. It's a loss for everyone, PSL, that we are not utilizing Wasim bhai's skills and experience. Also, he would add that venom and X factor which is missing from the team. अजी तुसी उन venom ते X factor हो यार. 2 साल आप लोगों ने बड़ा मुझे अटैक किया है, बड़े मुझे छितर मारे हैं लिटरली इन्होंने सोशल मीडिया पे. कराची वालों ने कराची के क्या, अबे मैंने टीम पिक कर, अगर मैं भी आता हूँ पिक कर लिया हमने प्लेयर मिल मिला के सब ने, लोकल गाय लोकल नॉलेज भी ले ली. खेलना तो प्लेयर्स ने है. वी वांट टू विन. बट माई पॉइंट इज कि या यू आर एब्सोल्युटली राइट. अगर हारना भी है तो ज़रा लड़के हारो, आखिरी गेंद तक हारो. वही जो हम पाकिस्तान टीम के लिए भी कहते रहे हमेशा यहाँ पे पेविलियन के अंदर. अच्छा बहुत सारे हैं चूंकि कराची किंग्स से रिलेटेड करके मेरा ख्याल है जो मेन थे मैंने कर दिए. आगे जरा और भी कड़वे वाले हैं तो मैं उनको स्किप करने लगा. सरमद अब्बास ख्वाजा आपका एक्स हैंडल है सैम ख्वाजा. आपका सवाल है पूरे पैनल से, एंड पैनल नीड्स टू लिसन टू दिस वेरी केयरफुली. राइट, इज PSL unfortunately turning into a crash course to entry in national squad? Is the reason for us witnessing fragile bowlers in Team Pakistan that cannot bowl above 4 overs with intense pace? For all of you. Yeah, I'll start off and I agree with this. बिल्कुल ठीक कह रहा है. PSL से आप परफॉर्मेंस देखते हो तो पाकिस्तान टीम के लिए अगर लड़कों को पता है कि मैं इस PSL से पिक होना है तो बाकी फोकस ही नहीं करेंगे फर्स्ट क्लास वगैरह में, इधर ही देखेंगे. मैंने एक स्टेटमेंट सुनी थी हमारे प्रीवियस जो सिलेक्टर्स थे जो 2 साल पहले भी थे, उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था कि हम PSL से टीम पिक करते हैं. कौन थे ये हजरत चलो आई थिंक, बट इसको लेकिन ये स्टेटमेंट्स नहीं है और ये माइंडसेट भी रहा है. आई थिंक इट्स अ टोटली नेगेटिव एंड रॉन्ग माइंडसेट. वी शुड टेक एनी प्लेयर फ्रॉम द डोमेस्टिक परफॉर्मेंस एंड दैट इज़ योर फर्स्ट क्लास क्रिकेट, योर लिस्ट ए क्रिकेट. अगर वहाँ पे कोई प्लेयर कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहा है जिसको हमने देखा है फलते फूलते, वो देखा है मुल्तान सुल्तान में. जब भी उन्होंने उस प्लेयर को पिक किया है उसने परफॉर्म किया. तो मुझे लगता है कि ये देखना पड़ेगा कि PSL अनफॉर्चुनेटली हमारी एक बहुत बड़ी वो ब्रांड ज़रूर है, लेकिन वो एक लोगों की या जितने यंगस्टर्स हैं उनकी फ़र्स्ट गोल जो है वो ये बन गया कि किसी तरीके से PSL में पहुंच जाओ, और दैट इज़ टू प्ले T20 फॉर्मेट. हालांकि इसीलिए पाकिस्तान के अंदर जो टैलेंट है
وہ میں بار بار کہتا ہوں جب آپ اچھی فرسٹ کلاس کرکٹ کھیلیں گے, جب آپ ریڈ بال کے اچھے پلیئر بنیں گے, بیسکس آف دا گیم آپ کی اچھی ہوگی, یو کین پلے اینی فارمیٹ. لیکن جب آپ T20 کی پریکٹس کریں گے وہ آپ پھر اپنا ادھر کریں گے نا ادھر کریں گے. یہ بھی آیا تھا کہ ہمیں ٹیسٹ ٹیم اپنی T20 ٹیم کو ٹیسٹ ٹیم میں کھلانا, T20 پلیئرس کو اب ٹیسٹ ٹیم میں کھلانا چاہیے. یہ بھی آیا تھا کہ اب گیم ڈفرینٹ ہو گیا. یہ کون تھے جینیس؟ آئی تھنک یہ رمیز بھائی تھے, جب انہوں نے ایک دو انٹرویوز میں کہا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ جب ہم نے T20 T20 کنزیکٹیو ورلڈ کپ کے فائنلز کھیلے تھے اس کے دوران ہی یہ, کیونکہ اس ٹائم پہ T20 ٹیم اچھا کر رہی تھی, تو ٹیسٹ ٹیم کو بھی انہوں نے کہا تھا کہ پھر T20 کے پلیئرز ڈال دیتے ہیں. رائٹ مصباح, وڈ یو لائک ٹو ایڈ ٹو دیٹ؟ انہوں نے کہا کہ کیا یہ بن گیا ایک کیٹاپولٹ بن گیا کہ بھی آئیں ادھر پرفارم کریں اور سیدھا پاکستان ٹیم میں نکل جائیں؟ دیکھیں ایٹ لیسٹ T20 میں تو یہ بن گیا ہے, اور مجھے لگتا ہے کہ میں نے کل بھی یہ بات کہی تھی کہ آپ T20 میں یا ایون PSL میں بھی جب پلیئرز پک کرتے ہیں, نوٹ آن دا بیسس اونلی T20 کرکٹ, کہیں نہ کہیں آپ ان کی ویلیو دیکھیں کہ وہ ڈومیسٹک کرکٹ میں اوور آل سارے فارمیٹس میں کیسا پرفارم کر رہے ہیں. ٹھیک ہے آپ T20 میں PSL کو ایک امپورٹنس دیتے ہیں آگے انٹرنیشنل کرکٹ کے لیے, بٹ اس کے پیچھے کہیں نہ کہیں ان کی پرفارمنسز ڈومیسٹک کی بھی ہونی چاہیے, تبھی وہ بہتر پلیئر ہوں گے اور لمبے عرصے کے لیے سسٹین کریں گے انٹرنیشنل لیول پہ. رائٹ جناب. ڈاکٹر نوشاد آپ کا ایکس ہینڈل ہے ڈاکٹر_نوشاد, اور آپ کہہ رہے ہیں ہاؤ از اٹ دیٹ کراچی کنگز اینڈ اسلام آباد یونائٹیڈ بوتھ ہیو ون PSL انڈر دا کوچنگ آف وسیم اکرم, and now we see a different story for Karachi Kings. Clearly Wasim Akram is an important factor in this equation. Wasim? نہیں, آئی سپوز کریڈٹ ٹو آل دا پلیئرز. جو مصباح کپتان تھا اسلام آباد کے ساتھ, جب ہم جیتے ہیں, اور جب کراچی میں جیتے تھے وہ ڈین جونز نے شروع کی تھی کوچنگ, اماد وسیم کپتان تھا. دے پلیڈ گڈ کرکٹ کھیلو گے, فیئر لیس کرکٹ کھیلو گے تو آپ جیتو گے T20. اور فٹنس 10 میچ کھیلنے ہیں, اسکیجول بڑا سخت ہے. ایک کویشچن میں اسی میں لے لیتا ہوں, محمد حارث ہمایوں صاحب کا انہوں نے بڑے کیپٹل لیٹر میں ساتھ لکھا ہے PhD. بل بورڈ لو آ لینا سی ہمایوں صاحب. اسکیجول آف PSL از بٹ کریزی because scheduling 2 matches on the same day in the same city increase the chances of no match if it's a washout. Next time please help them in preparing the schedule. I suppose یہ ٹائٹ سے ٹائٹ ہمایوں صاحب ہوتا جا رہا ہے, بیکاز ایک IL T20 آ گئی, اس کے ساتھ ساؤتھ افریقن لیگ آ گئی, اس کے ساتھ بنگلہ دیش پریمیئر لیگ آ گئی, اور یہ پتہ تھا پہلے سے ہمیں کئی چیزیں ہونی ہیں. جس دن یہ 18 کو فائنل ہے, اس کے آئی تھنک 4-5 دن بعد یا 8 دن بعد IPL شروع ہے. سو جو ٹاپ دنیا کے پروفیشنلز ہیں وہ باقی لیگیں کھیل کے کہتے ہیں اس سے ہم نے ریسٹ لینا ہے 1 مہینے کا, تاکہ ہم فریش ہو جائیں IPL کے لیے. ڈونٹ یو تھنک وسیم, آپ نے بڑی اچھی بات ہی کی, بٹ دس از امپورٹنٹ ناؤ اینڈ اٹ از ویری امپورٹنٹ فار دا پاکستان سپر لیگ پیپل ٹو انڈرسٹینڈ, جو PSL لیگ جو چلا رہے ہیں ان کے لیے سمجھنا کہ ناؤ دا لیگز آر گوئنگ ٹو کمپیٹ امنگسٹ ایچ ادر فار دا پلیئرس. They already are. اینڈ یہ جتنا زیادہ اسکویز ہوتا جائے گا اتنا زیادہ پلیئر چوز کرے گا یار کس والی میں مجھے فائنینشلی بینیفٹ زیادہ ہوتا ہے, 2 میں انجوائے کرتا ہوں, 3 میں سیکھتا ہوں, اپنی کرکٹ کو پالش کرتا ہوں, اسکل کو بہتر کرتا ہوں, اچھی وکٹوں پہ کھیلنے کو ملتا ہے, مجھے اچھے لوگوں کے ساتھ لوکل ڈومیسٹک ٹیلنٹ کے ساتھ کھیلنے کو ملتا ہے. یو نو آل دیز فیکٹرز ول اسٹارٹ کمنگ انٹو پلے. They are already mentioned it. ہم نے پہلے دن جب PSL شروع ہوا ہے کہ IL T20 ساؤتھ افریقن لیگ میں IL T20 میں $2.5 ملین پرس ہے ٹو بائی پلیئرس. یہاں پہ ابھی تک 1.2 ملین جو پہلے سال سے شروع ہوا تھا ابھی تک وہی ہے, وہ بھی ڈالر روکیا ہوا ہے میرا خیال ہے انہوں نے. PCB سے کوئی معاہدہ ہے کہ $200-200 تک ہی رہے گا, اس سے زیادہ نہیں جائے گا. تو لوگوں نے تو پھر دوسری لیگوں میں جانا ہے, پیسے زیادہ ملیں گے. محمد طاہا صدیقی صاحب آپ کا سوال ہے. السلام علیکم فخر بھائی اینڈ ٹیم. آئی وانٹ ٹو آسک وائی Mohammad Nawaz is not improving as a left arm spinner. Correct me if I am wrong, but I think he's not assessing the conditions well. What is the use of a slow pitch if you're not varying the speed? Misbah. بالکل ٹھیک ہے. سب سے امپورٹنٹ چیز میرے خیال میں جب blame goes to the person. I mean if you are not learning اتنی کرکٹ کھیلنے کے بعد آئی تھنک جو کانفیڈنس لیول ہے آپ کا ڈفرینٹ ہونا چاہیے, اور آپ کو اپنے آپ پہ بلیو بھی ہونا چاہیے. اینڈ دین یو شوڈ نو کہ یار میں کیا بولنگ کرتا ہوں, کہاں مجھے کیا چینجز کرنے. سب سے پہلے تو آپ اپنے آپ کو ایز اے پلیئر آپ کو جاننا ضروری ہے, میرا ایکشن کیا ہے, کہاں میں غلطی کر رہا ہوں, اپنی بیسکس کو میں نے دیکھنا ہے. اور پھر جو ٹیکٹکس ہیں آپ کے کہ ٹیکٹیکلی یہ پچ کیا ہے, اور میں نے اس پہ جب آپ مینٹلی
خود ڈاؤن ہے, کانفیڈنس نہیں ہے, تو پھر کیا ہوگا؟ ایگزیکیوشن تو بعد کی بات ہے نا. آپ پہلے ہی ہلے ہوئے ہیں تو آپ وہ کر ہی نہیں پائیں گے جو آپ کرنا چاہتے ہیں. تو سب سے امپورٹنٹ چیز مجھے لگتا ہے کہ نواز کو جو ہے اپنی سیلف بلیف کہ ہاں میں یار اتنے عرصے سے کھیل رہا ہوں, آئی کین ڈو دس, مجھے پتہ ہے میں نے یہ کرنا ہے, اینڈ گو دیئر ود دا بگ ہارٹ, اور جا کے آپ اس چیز کو کریں. اس کے بغیر مشکل ہے, کوئی بھی آپ کی ہیلپ نہیں کر سکتا. اور جناب مائی کویسچن ٹو دا پینلسٹ اگین, یہ آپ چاروں کے لیے بہت ضروری. وی آر سینگ اے لاٹ آف اوپنرز پرفارمنگ ان دس پی ایس ایل. وجی عباس, آپ کا سوال ہے. وجی عباس, وجاب SKAN آپ کا ایکس ہینڈل ہے. Again, my question to all the panelists, we are seeing a lot of openers performing in this PSL. Who do you see eligible to play for Pakistan in the middle order in the T20 World Cup at number 4, 5, 6? Please, all of you suggest. Janab, آپ سب کے لیے کافی ڈسکشن ہم اس بارے میں کر ہی رہے ہیں کہ اوپنر تو آپ کو آپشنز نظر آتے ہیں, لیکن مڈ اسپیشلی نمبر 5 اور 6, نمبر 4 تک کی آپ کے پاس آپشن ہے. نمبر 5 اور 6 کے اوپر آپ کے پاس افتخار ایک نظر آتے ہیں. اعظم خان اوبیسلی انٹرنیشنل لیول پہ ابھی تک پرفارم نہیں کر سکے. اگر آپ پی ایس ایل میں لوکل پلیئرز دیکھیں تو یہ دو ایسے لگتے ہیں کہ یار دے کین کلیئر دا باؤنڈری اور فنش کر سکتے ہیں گیم کو. تو آئی تھنک کہ وہاں پر پاکستان اور دوسرے پلیئرز کو سوچنا چاہیے. بڑی ایک جب میں اپنی مثال دوں گا کہ جب میں ایز اے بیٹسمین کھیلنا شروع کیا تو مجھے اگر میں بیٹنگ آرڈر پاکستان کا ٹیسٹ کا دیکھتا تھا تو مڈل آرڈر ہمیشہ سے اسٹرانگ رہا ہے. اگر چینج ہوتی تھی تو اوپن پہ ہوتی تھی. تو میں نے فوراً یہ دیکھا کہ اگر میں ٹاپ 3 میں کھیلوں گا تو میرا پاکستان کھیلنے کا چانس زیادہ بڑھ جائے گا. تو یس چیلنجنگ ہے, نیا بال ہے, آپ وکٹ گرتی. اسی طرح چیلنجنگ ہے 5 اور 6 T20 کرکٹ میں کہ آپ نے آتے ہی ہٹس لگانی ہے. لیکن اف یو بیکم ایکسیپشنل پلیئر دیر, آپ اسٹریٹ اوے آپ اندر جاتے ہیں ٹیم کے, کیونکہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ آپ کے پاس آپشن کم ہے. آئی تھنک پوٹینشیلی مجھے جو نظر آ رہا ہے سمپل ہے. آغا سلمان ہے, اعظم خان ہے, افتخار ہے, شاداب. یہ آپ کے, اور فخر آلریڈی آپ سوچ رہے ہیں ان کے بارے میں. ٹاپ 3 کا آپ کو پتہ ہے یہی بنتا ہے پوٹینشیلی, آپ کے پاس یہی بنتا ہے. ابھی آپ کس کو سوچتے ہیں جو ابھی کھیلے ہیں, بابر ہے اس میں, رضوان ہے, سیم. آئی تھنک سیم ٹاپ پہ ہے. اس کے بعد آپ بابر کو 3 پہ کھلائیں یا اوپن کرائیں, رضوان 3 پہ کھیلے. 4, 5, 6 آئی تھنک بیسٹ یہی ہے آپ کے پاس. آپ کی رائے بھی یہی ہے کہ سائم should be the opener. I think he should be the opener because left hand right hand combination آپ کو چاہیے. It's common sense. Yeah, it makes sense. But common sense is not that common at the moment. Yeah, but this he should open and 3 پہ ان دونوں میں سے کوئی بھی آئے. فیصل علاوی صاحب, آپ کا ایکس ہینڈل ہے فیصل علاوی. How can you drop Anwar Ali, the only finisher in your team, especially when you don't have Pollard also not playing? Constant wrong selection from Karachi Kings. Wasim Akram bhai, time to intervene. Also minus Nawaz in cricket, please. ہاں جی یار کیا نام بتایا تھا؟ فیصل علاوی. فیصل بالکل ٹھیک آپ نے پن پوائنٹ کیا. آئی ایگری ود یو. ہم یہ بھی یہی ڈسکس کر رہے تھے کہ انور علی کا ڈراپ نہیں ہوتا. اگر ڈراپ کرنا تھا جو نواز کی فارم ہے اس کو ڈراپ کر دیتے, انور علی کو کھلا لیتے, 1-2 اوور وہی کر لیتا. نواز نے 3 اووروں میں 40 کھایا ہے, 37 نواز نے کدھر گیا, 37 40 کھایا 3 اووروں میں, وہ بھی 40 کھا لیتا. کم از کم وہ آ کے آپ کے فنشنگ میں آ کے بیٹنگ کر لیتا. آئی ہوپ دیر از اے میتھڈ ٹو دیئر میڈنس ٹونائٹ. وی آل ہوپ سو. خرم خلیلی صاحب, خرم_خلیلی آپ کا ایکس ہینڈل ہے. Would you guys agree that the way Mohammad Rizwan utilizes his bowlers so effectively and remains so calm on the field somewhat reminds us of MS Dhoni's way of captaincy? Haan ji, you guys agree with that? I think we are jumping guns. MS Dhoni is one of the best captains in the history of the game. Absolutely. Apart from, I'm not saying کہ رضوان is not a very good captain. رضوان نے پچھلے 5 سال میں شو کیا پی ایس ایل میں کہ he is a very good leader. پہلے بھی 2 بات تھی اور میں نے اس دن بھی یہی کہا تھا کہ he is like him. And some of his, جیسے وہ نان ریگولر بالرز کے بیچ میں یوز کرتے ہیں, knowingly the conditions اور گیم کس طرف جا رہی ہے. Right. I think it's a genre of captaincy جو ہے ان کا اسی طریقے کا ہے جس طرح کا بالکل. Yeah, he's heading that way. It's heading that way, but the genre is the same. But is he as great as MS Dhoni? Well, long way to go. That's a lot of World Cups and a lot of wins around the world. اس کے لیے آپ کو پروف کرنا پڑے گا. MS Dhoni I think اس نے پوری انڈین کرکٹ کو چینج کر کے, کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اسے نہ جیتی ہو, اسپیشلی وائٹ بال. کام بہت ہے, بہت جلدی چونکہ انہوں نے ملانا ہوتا ہے. وسیم اکرم مل گیا, جوید میرداد مل گیا,
Right. एक मैसेज एक है असद की तरफ से, इनका हैंडल है असद 6969. उन्होंने बड़ा डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है असद ने. उन्होंने पूछा है कि शुड शोएब मलिक कंसिडर रिटायरमेंट फ्रॉम ऑल फॉर्मेट्स इंक्लूडिंग PSL. फिर मैं बोला नहीं, मुझे लगता है कि ये एक इंडिविजुअल डिसीजन है. एंड आई थिंक सो फार अगर आप मलिक को देखें, ये जो इंटरनेशनल लीग्स है ना, दैट इज ऑल अबाउट योर परफॉर्मेंस एंड योर फिटनेस. इफ यू डूइंग दोज थिंग्स राइटली, पीपल विल टेक यू इन द ड्राफ्ट. तो वो अगर वो फिट हैं, छोड़ दें. अगर वो 42 years old हैं, बट ही इज फिट देन, like he is more fit than the 20 years old guy at the moment. तो अगर वो हैं तो ठीक है, अगर वो परफॉर्म कर रहे हैं. Alright जनाब, ब्रेक से पहले आखिरी सवाल ले लेते हैं. मोहम्मद मौज़म खान, आपका एक हैंडल Mozam_1841. Question is from Misbah ul Haq. Usama Mir previously was in Karachi Kings and underperformed. Now in Multan Sultans is leading wicket taker. How can captaincy impact any player's performance? 4 years ago वो था last. ठीक है, वो लेकिन उन्होंने सवाल बता दिया कि वो उस वक्त तो नहीं बन रहा, underperform. अब जो आज से 20 साल पहले कोई मम्मी भी होगी इजिप्शियन फिरौन की, उसके बारे में भी पूछ लो हमसे. मेरा मतलब 5 साल पहले से कराची किंग्स में, बाद में वो इम्प्रूव हुआ है, पाकिस्तान खेला है, काउंटी खेला है जाके, मोर क्रिकेट ही प्लेड, फिटनेस इम्प्रूव किया उसने. और अचानक आपको एहसास हुआ कि कराची किंग्स का सदर अंदर से जाग के उठा है. नहीं, कोड़ा बाबा. kodababa.com. All right, with that we're going to take a break here in the pavilion. When we come back, there's more on the other side. Stay with us. Welcome back to the pavilion. मैं फखर आलम, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स कंटिन्यू कवरेज ऑफ द HBL PSL 9. और आज था मुकाबला कराची किंग्स का मुल्तान सुल्तान के साथ. मुल्तान सुल्तान ने अपना मैच जीत लिया. They have qualified, first team to qualify in the HBL PSL 9 for the playoffs. So congratulations to the Multan Sultans team, the captain, the fans. Well done, congratulations. Karachi Kings now find themselves with their backs against the wall, in trouble. With me in the pavilion, I have got Azhar Ali, I've got Mohammad Hafiz, Misbah ul Haq and the great Wasim Akram. और इसके साथ ही आइए जरा नजर डालते हैं आपके और हमारे फेवरेट स्कोर कार्ड पे. ये वो वाला टेबल है that matters the most to us here in the pavilion, and that is the leaderboard. And here is how the leaderboard is looking like. जनाब, ये सिचुएशन है इस वक्त. फीस आ गया भाई, नेड़े नेड़े साढ़े. ओके, आज तो जरा होना सीरियस हो जाइए. Mohammad Hafiz is closing the gap on Azhar Ali and Wasim Akram, while Misbah ul Haq is continuing. सपोर्ट कर रहा हूँ. खत्म करना ही नहीं, आप बोलते नहीं, बोल सकते हैं. कराची किंग को सपोर्ट कर रहा हूँ, तो आई थिंक उन्होंने ये बनाया है. हम तो डूबेंगे सनम, बस आप तुमको भी ले डूबेंगे. आप जब वहाँ पे बैठे थे तो उस वक्त भी आपको काफी तकलीफ पहुंचाई और आप भी बचा. या अब थोड़ी कम है, बिकॉज आंखें बंद कर लेता हूँ. आप क्या आतिफ का गाना गा रहे थे आज? अब तो आदत सी हो गई है मुझको ऐसे जीने में. लेकिन ये स्कोर, ये लीडर बोर्ड देखने के बाद मुझे लग रहा है कि वो हैट छड्डो होने ते कख भी नहीं आना. क्यों? भूल गए ना सारे. नहीं, कोई नहीं भूला, हमें याद है और हम आपसे याद दिलाते रहेंगे. आप 14 पॉइंट्स के साथ हैं, आगे हैं आप. इवेंचुअली जीतने वाले ट्रॉफी मिलेगी. गरीब गुरबा होते ने कितों आना है. हैट चलो ज़ैन मार्केट तो ले आ रहे हैं, कितने चाहिए देनी हुक्म कर. हाँ, और वैसे भी इधर यार में टोपी पहनाने में हम लोग मास्टर हैं. अगर कोई टोपी चाहिए तो हम बना देंगे तुम्हें. नंबर 1. All right, कल की ये मैच के ऊपर नजर डाल लेते हैं. Tomorrow we've got another game in store for you right here at the HBL PSL 9. There you go, match number 20. इस्लामाबाद यूनाइटेड बामुकाबला पेशावर ज़ल्मी. कल आपके लिए ये मैच है. बड़ा मुकाबला होगा जनाब, रावलपिंडी से 7 बजे शाम को बराह रास्त आपकी खिदमत में, आपकी स्क्रीन पर ए स्पोर्ट्स के ऊपर. और हम आपकी खिदमत में हाजिर होंगे 5 बजे. तो डोंट फॉरगेट टू ट्यून इन, एंड दैट्स द गेम, मैच नंबर 20 at the HBL PSL. And with that I'd like to say thank you Azhar. You've been fantastic today. बहुत शुक्रिया. बाल तुम्हारे बेहतर होते जा रहे हैं एवरी डे के साथ. खिलौना जा रहे हैं, है ना? मैंने नहीं कहा, आपने कहा. खुद ही कह दिया आपने. Thank you Hafiz. You've been fantastic, and thank you for all the golf tips that you've been giving us. बहुत शुक्रिया. Right. And thank you Misbah. Thank you for the दुम्बे की कढ़ाई today that you ordered for all of us. And then you went into रास नहीं है. मुझे तो रास नहीं है, मैंने इसलिए नरगिस से कोफ्ते खाए अपने, और आप फूड कोमे में चले गए. स्किप ना मैनू गेंद मारो, तुसी माफ करते हो. And thank you Wasim, thank you like always. You've just been fantastic. Always an absolute delight to have you around us, especially the day Karachi Kings play. You're in such fine spirits, especially after the game. And as president of Karachi Kings, we truly appreciate your services. Just get on with the show, man. Right. Day off ले लिया करें. कराची के मैच पे डे ऑफ ले लिया. No, but it does really matter to us that you are the president of Karachi Kings. Day off ले लिया करें. Yes, thank you. अब मैं खड़ा हूँ. And I think that tonight, ladies and gentlemen, the president of Karachi Kings deserves a good night's sleep.
Good night, Waseem. Thank you very much, दोस्तों. And याद रहे हमेशा की तरह 8-bit Gulkan. Good night.